ठीक है. So, candidates, would you like to tell me about quick short introduction about yourself? Not that much big, just like you are from currently working or in an IT or a non-IT field. What's your graduation in what's your subject matter? Oh, what's your course was in the graduation, either it's computer science or electronics or what. So you can start, anyone can start, and we can spend around 5 minutes for that. So just a quick introduction about three things: your name, currently working, and expectation from your course, expectation from this course. So who's going to start first? कोई भी start कर सकता है. Good morning, sir. Yeah. My name is Riya Hindus. I have completed my graduation in civil engineering and I am a fresher. Fresher. Okay. And your year of pass out? 2022. Okay, that's great. Thank you for joining, Riya, and we can move to the next. Good morning, Uh, sir. Good morning. Sir, my name is Avinash. I have completed BE Mechanical in 2017. Hello. Great. Currently not working. Fresher Okay, for that's all. AWS DevOps engineer. Okay, that's great. Good morning, sir. Thanks. Good morning. Myself Kiran Natikar. I have completed my BTech from computer and I pass out in 2019. Currently, I'm working in FS technology for past 3.5 years, and I'm working in a banking sector to support an application. Okay, that's nice. So, you in support application, what kind of tools or technology you're using? Yeah, IntelliMatch application is there. Working in IntelliMatch application along with the database. Okay, that's nice. That's nice. Next, please. Good morning, sir. Good morning. Myself Shivam Mari. I'm from Mm-hmm. Sangli and I completed my graduation in mechanical engineering in 2019. And I'm working as a content writer in TCS from last 2 years. Okay, that's great. Thanks for joining, Shivam. Thank you. Hello, sir. Hello. My name is Kaustubh Kosekar. I have completed BE Civil Engineering. I have no experience right now. I have completed BE in 2019. Okay. Thanks for joining, Kaustubh. Thank you, sir. All right. Anyone else? More three candidates can give, and then we can start. Because कोई और बताना चाहेगा? Uh, okay. Okay. All right. So we'll start in 1 minute. Shivam, let us know if we can start in a minute.
Okay, Simam, can we start? Hello. Yes, sir. Yes. You Can can. we? Okay, like she said, there is some more candidates joining. All are joined and Okay, thank you. All right, guys, let's start our course of DevOps. So in this, the first class always is like how I can, make use of DevOps in my career and what are the different things I need to know in DevOps before I start DevOps. जॉब कैसे है, कितनी है, कितना परसेंट मार्केट एक्वायर है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें, मतलब वो मैं कर चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए। आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल फील्ड, तो मैं डेवॉप्स को एज अ टेक्निकल फील्ड में मेरे लिए कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे मैं उसको कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स फर्स्ट क्लास में जानने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बिकॉज अगर हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे और कोर्स पूरा कर लेंगे उसके बाद आप पूछोगे तो वो वही बात हो गई कि रामायण खत्म हो गई, ये नहीं पता कि राम कौन थे, ठीक है। सो इन दैट केस सम क्वेश्चंस जो मुझे लगता है पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग डेवॉप्स। कुछ क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और हम डेवॉप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उसकी होती है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डेवॉप्स है क्या, मतलब चलो उससे पहले कि डेवॉप्स का मार्केट स्कोप कितना है। तो डेवॉप्स आने वाले पिछले लास्ट 5 इयर्स से डेवॉप्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये है कि मतलब वैकेंसीज जो हैं, मतलब जब इनिशियली जो मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यू प्रोफाइल आती है तो उसका एक पीक पॉइंट होता है कि भाई अब इससे ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगी। जैसे डॉट नेट, जावा, कोडिंग, मतलब ठीक है कुछ सालों तक चले, फिर एक पीक आ गया, फिर वहां से वो कम होती गई पोजीशन, बिकॉज चीज़ें ऑटोमेट होने लगी या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, पाइथन जैसी, या और भी चीज़ें आ गई जो कि इजी थी लिखना। तो डेवॉप्स में पिछले 5 सालों से अभी तक चीज़ें सिर्फ ग्रोथ में है, तो इसका पीक नहीं आया है कि ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। क्योंकि इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ कि मैंने जब अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 लोगों की वैकेंसी थी। वो 2 लोगों की वैकेंसी आज पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, मतलब एटलीस्ट अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जिसमें 3000 एम्प्लॉयज हैं और उसमें कुछ 1500 या 1700 नॉन फाइनेंस, बिजनेस, एमबीए, सेल्स वाले लोग हैं, तो वो है। और अगर 1300 लोग टेक्निकल हैं तो उसमें अराउंड 200 लोगों की एक एक ग्लोबली डेवॉप्स टीम है। ग्लोबली, एक जगह पे नहीं, ग्लोबली मतलब अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द लोकेशन में, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग कंट्रीज में चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में हो या आप जिस कंपनी को ज्वाइन करोगे वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। मोस्टली सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है? HCL, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, जो क्लाइंट पे डिपेंडेंट रहती है, जिनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं बट दे मोस्टली डिपेंड ऑन क्लाइंट। और क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जैसे अडोबे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और और भी बहुत सारी कंपनीज हैं यार, मतलब अलग अलग टाइप की, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड जिसे कहते हैं। मर्सिडीज बेंज, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये सब डिपेंडेंट होती हैं आईटी कंसल्टिंग के लिए टू डिफरेंट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो काम कैसे होता है? काम कैसे होता है, कुछ लोगों को पता होगा आईटी में काम कैसा होता है, आप में से कुछ लोग आईटी बैकग्राउंड में, कुछ लोग आईटी बैकग्राउंड में नहीं है, तो मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ। काम ऐसे होता है कि एक कंपनी बोलती है कि मुझे मैं सिर्फ डेवॉप्स के टर्म्स में बताऊंगा कि मेरे को क्लाउड पे जाना है, मेरे को अपने, वो डिसाइड करते हैं कि यार पिछले 20 सालों से हम डेटा सेंटर पे काम कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर पता है सबको क्या होता है? डेटा हाँ सेंटर सर। पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो बोल सकता है सर मुझे डेटा सेंटर नहीं पता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा। डेटा सर्वर पे जो भी एप्लीकेशन होस्टेड थी, जितनी भी मशीन्स डेटा सेंटर पे बनी हुई थी, अब वो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम
क्या कर सकते हैं कि हमें अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बचानी है और हमें स्केलेबिलिटी को अचीव करना है। हम ये चाहते हैं कि हम ग्लोबल रिकॉग्नाइज हों, ठीक है। अब मान लो ग्लोबल रिकॉग्नाइज होने के लिए उन्हें पहली चीज ये करनी पड़ती, अगर क्लाउड नहीं होता तो उनको ये करना पड़ता कि हर कंट्री में जाके या किसी कंट्री के पास जाके डेटा सेंटर बनाना पड़ता। मान लो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मैं अपने क्लाउड नहीं है, मैं अपनी कंपनी को आ, आ, मैं अपनी कंपनी को क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सपैंड करना चाहता हूँ यूरोप में। तो अब यूरोप में के जो यूजर्स हैं, मार्केटिंग मैंने कर दी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर ली। तो अब बात है कि वो मेरी एप्लीकेशन को जब यूज करते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि यार ये एप्लीकेशन बहुत स्लो है। मतलब हमें जब भी हम लॉगिन करते हैं तो वो पहले प्रोसेसिंग करता है, फिर डैशबोर्ड जाता है, फिर जो भी ऐप का फीचर है बहुत स्लो चल रही है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। जैसे अगर कोई ऐप स्लो चलती है तो आप लोग क्या करते हो? कोई ऐप स्लो चलती है तो आप लोग क्या करते हो अपने फोन्स में? क्या करते हो अगर कोई ऐप स्लो चलती है? उसको रिव्यू देते हो प्ले स्टोर वगैरह पे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। यही करते हो ना? कोई स्लो ऐप हाँ को सर। चलाना चाहता है फ़ोन पे, फ़ोन हमने ले रखे हैं महंगे महंगे OnePlus 11G, और लोगों के पास आजकल आईफोन्स और ये सारे बड़े हैवी हैवी फ़ोन्स हैं, 4-4 GB रैम के। पहले जितने रैम के लैपटॉप होता था उतने लैप का रैम का फ़ोन है मेरे ब्रदर के पास। मेरा ये जो लैपटॉप है 8 GB रैम का है, और उसके पास एक फ़ोन है वो 8 GB रैम का है, ठीक है। तो अब अगर इतना कंप्यूट पावर है और एप्लीकेशन स्लो चलेगी तो भाई वो तो गुस्सा आएगा ना उसको, वो तो अनइंस्टॉल कर देगा। एक अनइंस्टॉल होने की वजह से और भी अनइंस्टॉल होंगे। तो मैंने जितना भी मार्केटिंग का पैसा खर्च किया था यूरोप में, वो सब वेन हो जाएगा क्योंकि लोग अनइंस्टॉल करने लग जाएंगे। अब क्या होता है ना कि जब ऐसे नेगेटिव फीडबैक आता है ना किसी प्रोडक्ट का, तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में मैनेजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, यार रीजन फाइंड आउट करो। तो बिजनेस एनालिस्ट को बुलाया जाता है, सेल्स को बुलाया जाता है, आर्किटेक्ट को भी बुलाया जाता है। अभी वो डेवऑप्स का रोल नहीं आया है। अभी मैं तो तुम्हें बस एक फ्लो बता रहा हूँ कि डेवऑप्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो तुम्हें ये बैकग्राउंड समझने की जरूरत है, ठीक है। बाकी चीजें तो बहुत आसान है समझने के लिए। ये समझ आ गया कि कहाँ इम्प्लीमेंट होता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो बढ़िया है। किसी को कोई सवाल हो तो बीच में वो पूछ सकता है, ठीक है। किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यू गाइस कैन टॉक टू मी। हाँ, एक चीज़ और, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। प्योर इंग्लिश में भी मैं वो कर सकता हूँ, बट हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे अपनी उसमें, एंड देन बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन इन इंग्लिश, ठीक है। डिस्कशंस हो गए या कोई टिपिकल टॉपिक हो गया, हाउ टू आंसर इन इंटरव्यू, दैट इज मच वेरी मच इंपॉर्टेंट। सपोज my candidates and students ask, sir, if suppose I have been asked about what is CI/CD pipeline, what kind of answer I am going to give in CI/CD, तो वो मैं आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा क्योंकि हिंदी में बोलना आईटी में नेगेटिव अभी तक है, क्योंकि क्लाइंट्स बाहर के होते हैं तो उनको हिंदी नहीं समझ आती। सो इंग्लिश इज गोइंग टू बी प्रिफर्ड फर्स्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन आईटी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंग्लिश पे भी ईमेल्स लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स कुछ टॉपिक अगर कुछ समझाने के लिए आसान पड़ेगा, फॉर दैट वी कैन यूज दिस हिंदी। सो दिस कोर्स विल बी रन इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूँ मैं? यस। ठीक है। सर, जी डेवॉप्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट है क्या? हाँ, मैं उस पर पहुंचूंगा, मैं भी पहुंचता हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि डेवॉप्स को, मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसको कंप्लीट करता हूँ, भी आपके इस वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ। मैंने अब तक जो बताया उसमें तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? नो। ठीक, मैं वो उस वाले पॉइंट पे आता हूँ, उसे कहते हैं प्री रिक्विजिट। तो प्री रिक्विजिट वाले पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। तो अब क्या हुआ कि जो आर्किटेक्ट और इन सबसे पूछा गया
कि what is the downfall, what is the reason behind getting so many uninstallations. तो बिजनेस वाले तो बोल देते हैं कि सर द पीपल यूजिंग applications in Europe or outside India, they are facing issues in the latency of the application. बहुत स्लो है. तो आर्किटेक्ट को पकड़ा गया, भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. वो ये कहता है कि यार हमारे पास डेटा सेंटर ही नहीं है यूरोप में. अब डेटा सेंटर नहीं है तो क्या होता है कि यूरोप का बंदा जब ऐप को ओपन करता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन और रिक्वेस्ट इंडिया आती है, ऑल द वे फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. चाहे जितना भी टाइम लगता हो पर स्लो होगा, चाहे कितने भी ऑप्टिक फाइबर्स हो फिर भी स्लो है. ठीक है, अंडर द ओशन केबल्स इंटरनेट जैसे काम करता है. तो उसने कहा कि इस चीज को हमें फास्ट करने के लिए हमें क्लाउड पे जाना पड़ेगा, और क्लाउड पे जाने की एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर का यूज करना पड़ेगा. तो वो कंपनी फिर एक प्रोजेक्ट ओपन करेगी और आईटी कंपनीज के लिए कि मेरे प्रोडक्ट को क्लाउड पे लेके जाना है, और उनमें से किसी एक को चूज करेगी. मान लो किसी एबीसी आईटी कंपनी को चूज किया और उसको बोला कि ठीक है आप तुम मेरे इस प्रोजेक्ट को क्लाउड पे लेके जाओ. अब वो बोलेगा क्लाउड पे लेके जाने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का पार्ट, जिसे कहते हैं CI/CD. तो वो ये बोलेगा कि आपको अपनी एनवायरनमेंट में डेवऑप्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिस डेवऑप्स के अंदर, जो डेवऑप्स एक कंसेप्ट है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट, इट्स अ माइंडसेट. मान लो अगर 10 लोगों के टीम मेंबर है तो 10 लोगों को डेवऑप्स पढ़ने के लिए डेवऑप्स टूल्स आने चाहिए. पर अगर उनसे पूछा जाए कि आप डेवऑप्स के बारे में क्या जानते हो, तो डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स आपका एक एक पूरा एनवायरनमेंट होता है, एक पूरा माइंडसेट होता है कि मुझे ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स के लिए CI/CD बनानी है, मेरे पास एक जेंकिंस का CI सर्वर होना चाहिए, मेरा सब कुछ वर्जन कंट्रोल में होना चाहिए, मेरी डिप्लॉयमेंट्स ऑटोमेटेड होना चाहिए, मेरे पास आर्टिफैक्ट्स के अंदर चीज़ें स्टोर होनी चाहिए, मेरे पास एंसिबल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होनी चाहिए. तो डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवऑप्स के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कुछ टूल्स होते हैं जिससे मिलकर डेवऑप्स बनता है. और डेवऑप्स का जो फुल फॉर्म है वो दो टर्म से बना है, एक है डेवलपर, एक है ऑपरेशंस. पहले के टाइम पे क्या होता था, आपस में इनकी बहुत लड़ाई होती थी. वो कहता था मेरे एनवायरनमेंट पे ठीक चल रहा है कोड, ऑपरेशन वाला कहता था मेरे पास नहीं चल रहा है, तुमने कुछ गलत दिया है. डेवलपर कहता था भाई मेरी मशीन पे तो ठीक चल रहा है, तुमसे रिलीज नहीं हो रहा. तो इस काम को करने में 10-15 दिन लग जाते थे. पर डेवऑप्स के आने से, हमारी ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट से और डॉकर कंटेनर्स जैसी टेक्नोलॉजी आने से, क्यूबरनेटिस जैसी टेक्नोलॉजी आने से हमारी डिप्लॉयमेंट्स बहुत आसान हो गई, और चीज़ों के लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा था वो कम हो गया और चीज़ें ऑटोमेट होने लगी. अब आप बोलोगे यार ऑटोमेट करके कंपनी का क्या फ़ायदा है? कहीं किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया, तुमने इतना पैसा डेवऑप्स पे खर्च कर दिया, इतने सारे टूल्स दिए, रिसोर्स हायर करे, कंपनी कहाँ फ़ायदा उठा रही है? किसी को पता लगा इसका रीजन? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि कंपनी का क्या फायदा हो रहा है? ट्राई करो, नहीं आया तो बताओ. सर दो अलग लोग फील्ड भी लेने की, अच्छा है एक ही ले लो. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा अगर वो इतना पैसा डेवऑप्स पे इम्प्लीमेंट करती है. मैं बताता हूँ. तुम मान लो कि कंपनीज के कॉम्पिटिटर होते हैं, जैसे ड्रीम 11 है. ड्रीम 11 ऐप का नाम सुना है सबने? हाँ सर. हाँ सर. ड्रीम 11 जैसी Yes. फैंटेसी पॉइंट सिस्टम वाली एप्स अब बहुत सारी आ गई हैं. बाई टीम 11, पता नहीं कितनी सारी और आ गई है. पहले तो एक ही थी, आज से 3-4 साल पहले. तो कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए. तो इनके आपस में तुम देखोगे ना कि ऐप में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं. वो ये लॉन्च करता है, वो ये कहता है 11 नवंबर बना सकते हो, वो कहता है ये कर सकते हो, कहता है. तो आपस के बीच में जब कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको नए नए फीचर्स लॉन्च करने पड़ते हैं. अब इसका एग्जांपल आप एक और चीज से देख सकते हो. अब लेंस कार्ट है. लेंस कार्ट के अंदर आप क्या करते हो, आप अपनी फोटो को अपलोड करके यू कैन ट्राई आउट द स्पेक्टिकल्स और ग्लासेस, हाउ इट विल लुक ऑन योर फेस. ये फीचर है ना उसके अंदर. आप फोटो खींच के डालोगे, आपको फेस पे पता लग जाएगा कैसा है. और वहीं एक दूसरी ऐप है टाइटन आई प्लस. वो भी स्पेक्टिकल्स बेचती है, टाटा टाइटन आई प्लस. वो भी चश्मे बेचती है.
पर उसके पास ये फीचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं एज ए कस्टमर आप चीज को लेने से पहले ट्राई करोगे, ठीक है। हाँ सर। पर आपको ये फीचर चाहिए होगा जहां पे आप अपने फेस की फोटो को अपलोड करके आप ग्लासेस लगा सको, करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहे। कल को टाइटन आई प्लस ने भी ये फीचर डाल दिया, लेंसकार्ट ने कुछ एक्स्ट्रा फार, फिर तो आपस में ये जो चीज जो रोज के रोज नए अपडेट्स आते हैं एप्स में, वो इतनी जल्दी आते हैं, वो आते हैं जब आपका डेवलपर, आपकी डेवलपमेंट टीम अपने कोड को, लिखे हुए कोड को डिप्लॉय कर पाती है। और रोज के बेसिस पे डिप्लॉय करना मैनुअली बहुत टफ होता है, इसीलिए हम डेवऑप्स का यूज करते हैं। डेवऑप्स आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। मतलब ऐसा मान लो कि मुझे यहाँ से वहां जाना है कुछ अचीव करने के लिए, और ये ब्रिज पार करना है। अगर वो ब्रिज ही नहीं होगा तो मैं उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। तो डेवऑप्स आपको इनेबल करता है कि आप अपनी डिप्लॉयमेंट्स को फास्टर तरीके से, ऑटोमेटेड तरीके से डिप्लॉय कर पाओ, और बहुत ही जल्दी तरीके से। इसका एक एग्जांपल कैसे है, मतलब कैसे हम कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। 3 कंपनीज थी, ठीक है, कंपनी ABCDEF GHI। मैं उन कंपनीज के नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूँ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, तो कैसे काम होता था। अब जो उन तीन कंपनीज के अंदर से आउट ऑफ दोज 3 कंपनीज, वन कंपनी वाज अ क्लाइंट कंपनी। क्लाइंट कंपनी मींस इट वाज बिलिंग द अदर 2 कंपनीज टू create their projects. So one company was us, who are working on setting up the CI/CD pipelines and cloud migrations. Other company was the company who are doing the QA, मतलब जो हमारे किए हुए काम को वैलिडेट करता था। क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रोडक्ट, ये क्लाउड माइग्रेशन भी कराए, वो टेस्टिंग भी करे, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहता है ना। तो उसने हमें हायर किया। ऐसे ही होता है आईटी में काम, ठीक है। और दूसरी कंपनी को जो हमारे काम को वैलिडेट करता। अब इंडिया के टाइम जोन में हम लोग काम करते थे। इंडिया का टाइम जोन सबको पता है। जब इंडिया में अभी 8 बजे है, तो यूएस में अभी रात के 7:30 बज रहे होंगे, या 6:30, शाम के 6:30 बज रहे होंगे। तो बिल्कुल उल्टा है टाइम। तो क्या होता था कि मान लो हमने कुछ फीचर डाला, या कोई एप्लीकेशन को AWS क्लाउड पे ले गए, और वहां पे AWS के अंदर, अब हम तो 5-6 बजे हमारी शिफ्ट खत्म हो जाती थी, हम चले जाते थे, वो लोग आते थे 6 बजे के बाद। अब वो अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जब तक डिप्लॉयमेंट होती थी, डिप्लॉयमेंट होती नहीं थी ये ऑटोमेटेड, क्योंकि डेवऑप्स नहीं था। तो जब हमने डेवऑप्स इंप्लीमेंट किया, तो शाम को जब हम 4-5 बजे हम लोग सब, हमारी इंडिया शिफ्ट खत्म होती है, तो हम अपने कोड को चेक इन करके डिप्लॉय करते थे। तो जब हम डिप्लॉय करते थे, तो 2-3 मिनट में कोड डिप्लॉय हो जाता था, एनवायरनमेंट बन जाता था पूरा का पूरा। और जब यूएस की वो टेस्टिंग टीम, जो यूएस के टाइम जोन पे थी, जब वो आती थी ऑफिस, तो उन्हें कोड डिप्लॉय बनता था। तो मतलब वो जो घंटे थे उनके 12 घंटे, वो बिजनेस लॉस नहीं हो रहा था। तो 12 आवर्स का बिजनेस लॉस बचाया। तो सोचो कितना पैसा बचा होगा ईयरली, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि डेवऑप्स क्यों जरूरी है। मतलब ये हमारी बिल्ड्स को कभी भी रन कर सकते हैं, हम कभी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो 2 रीजन मैंने आपको बताए, बाकी रीजन हम जैसे जैसे कोर्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। नो सर। ओके, अब इसके प्री रिक्विजिट के बारे में जानते हैं कि मुझे क्या क्या आना चाहिए। डेवऑप्स को, जो कोर्स आपने ऑप्ट किया है, इस कोर्स का जो कंपोनेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर आपकी प्री रिक्विजिट जो है, मतलब ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए या नहीं, ठीक है। हमें लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स आनी चाहिए, और ग्रेडल करके एक छोटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको मैं बताऊंगा ऑन गोइंग ऑन द कोर्स, वो आना चाहिए।
ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए और आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपका लैपटॉप एटलीस्ट 4 GB रैम का होना चाहिए जिसपे आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे। एक AWS पे क्लाउड अकाउंट होना चाहिए जो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है, AWS पे, क्योंकि हम कुछ डिप्लॉयमेंट्स AWS पे करेंगे। और एक गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। इसके अलावा और ऐसा कुछ भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। किसी को कुछ पूछना है इस चीज में? नो सर। नो। ओके, सो सर एक क्वेश्चन अब है हम, हाँ बताइए। सर, कोई कोई बोलते हैं कि कोई लैंग्वेज आना चाहिए, पाइथन, जावा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना पर। नहीं, देखो मैं तो बता, वो क्या होता है कि जब वो बोलते हैं ना आना चाहिए का मैं और शॉर्ट करता हूँ, उनको डिप्लॉय करना आना चाहिए। उनको भाई पाइथन जावा बहुत, उनको पढ़ना नहीं, उनको उनकी डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए। मतलब वो बिल्ड कैसे होंगी, वो डिप्लॉय कैसे होंगी। उसके अंदर जैसे मान लो क्या होता है कि जो लैपटॉप होता है, जो सर्वर होता है, सर्वर पता है सबको सर्वर क्या होता है? हाँ सर लिखा है। सर्वर कैसे कोड को रीड करता है? जब हम एक डेवलपर के द्वारा लिखे हुए कोड को, द पर्सन हु इज राइटिंग द कोड, उसके कोड को हम कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल लैंग्वेज। मशीन रीडेबल लैंग्वेज कौन सी होती है? 010101 जो बाइनरी में वो रीड करता है, ठीक है। और वो कन्वर्ट किससे होता है? वो उसके बिल्डर से होता है, कंपाइलर से। वो कंपाइलर के बारे में हमें पता होना चाहिए और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में, जो कि हम डेवलपमेंट टीम से भी पूछ सकते। अब डेवऑप्स का मतलब ये नहीं कि उसको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आता होगा, कुछ नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती है। इन दैट केस development team will tell us that what kind of builder or parser they are using. ओके। मैं आपको अब कोर्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स है, और थोड़ा थोड़ा टॉपिक ओवरव्यू सबका देता हूँ जो हम इस ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे। सर आपका स्क्रीन स्टॉप है। हाँ, मैं वो स्लाइड ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। Okay. ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हम लोगों को टाइमिंग्स के बारे में भी डिस्कस करना है, तो वो हम एंड ऑफ द कोर्स में टॉपिक में करेंगे कि क्या टाइमिंग्स सूट करेंगी हमारे इस कोर्स को करने में। Can you see my screen? यस सर। यस सर। Yes. Okay. ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन मेरे पास है एंड यू नो अबाउट द 3RI ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक वो आपको शायद सीमा मैम ने या टीम ने बताया होगा। इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी consulting company which provides many trainings in different areas like data sciences, machine learning, AWS and all. So I am associated with 3RI from a very long time. I've trained around 1,000+ candidates here. Okay, so
या तो हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, जो पहला टॉपिक होगा हमारा कि डेवऑप्स क्या है, उसकी नीड, डेवऑप्स की ट्रांजिशन, टेक्निकल चैलेंजेस, मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में हम ये जानेंगे कि अगर डेवऑप्स की जॉब्स के बारे में, जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, उसका रीजन बीइंग कि लोग क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, और क्लाउड पे मूव करने का एक प्रिक्विजिट है कि CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्लाउड बहुत ही एक सिक्योर एनवायरनमेंट की तरह होता है। उसके अंदर कुछ भी मैनुअल होना एक बहुत ही बड़ी टेंशन की बात है। ठीक है, बेसिक लिनक्स एंड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे मैं आपको लिनक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ कमांड्स मैं आपको लिख के और करके बताऊंगा, प्लस कुछ कमांड्स आपको मैं एक लिनक्स की चीट शीट आपको दूंगा, जिसके अंदर 400 से 500 कमांड्स होंगी, जो आप याद नहीं कर पाओगे। कमांड्स याद नहीं करनी, बट कुछ कमांड्स हमें आनी चाहिए, जैसे फाइल क्रिएट करना, फाइल ओपन करना, डायरेक्टरी चेंज करना, परमिशन मोड चेंज करना, ऐड यूजर बनाना, कट करना, फाइंड करना, प्रिंट कराना। तो ये सारी चीजें हम लिनक्स के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर हम देखेंगे। बहुत ही मतलब देखा जाए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर टॉपिक के आपके पास नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में, और लास्ट में एक सेट ऑफ MCQs मिलेंगे फॉर एग्जाम पर्पसेस। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है AWS। ये AWS फंडामेंटल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें हम AWS का अकाउंट बनाएंगे, AWS की चीज़ों को जानेंगे, EC2 क्या होता है, S3 क्या होता है, IAM रोल क्या होता है, क्लाउड वॉच क्या होता है। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा AWS के रिलेटेड। तो इसके लिए आप सभी को मैं एक अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। उसमें AWS अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगता है, वो हमें बताना पड़ेगा। देन हम मूव करेंगे सोर्स कोड मैनेजमेंट एंड वर्जन कंट्रोल, जिसको कहते हैं गिटहब। तो गिटहब हमारा एक वर्जन कंट्रोल टूल है, उस पर भी हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हम कोड रिपोजिटरीज रखते हैं, उसके UI के बारे में जानेंगे, वर्जन कंट्रोल कैसे काम करता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, कोड को कैसे मूव करते हैं एक एनवायरनमेंट से, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम्स में क्या अंतर है। गिटहब की कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। गिटहब्स में पुश, पुल होता है, फेच होता है, कमिट होता है, ऐड होता है, गिट स्टेटस होता है। जो भी एक रेगुलर डेवऑप्स का बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता है कमांड्स, वो कमांड्स मैं आपको इसके अंदर लिख के बताऊंगा, और इसके साथ एक चीट शीट होती है जो जिसके अंदर और सारी कमांड्स लिखी होती है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। इसके बाद हम मूव करेंगे जेंकिन्स पे। इसमें हम जेंकिन्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। जेंकिन्स आपका कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है। जेंकिन्स का इंस्टॉलेशन करेंगे, जेंकिन्स पे ही हम अपनी CI/CD पाइपलाइन को बनाना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिडल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिडल के हेल्प से हम उस पाइपलाइन को बनाना शुरू करेंगे। फिर जेंकिन्स पे CI/CD पाइपलाइन बनाने के बाद हम मूव करेंगे मॉनिटरिंग पार्ट में, जिसके अंदर हम Nagios का यूज करेंगे कि Nagios काम कैसे करता है। Nagios एक तरह का मॉनिटरिंग टूल है। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कोई मॉनिटर करने वाला भी तो होना चाहिए, कि कल को अगर कोई इश्यू आ जाए हमारी पाइपलाइन में या क्लाउड के अंदर, तो हमें कैसे पता लगेगा कहाँ जाके ठीक करना है। तो उसके लिए हम पाइपलाइन की मॉनिटरिंग सेटअप करते हैं, या इंस्टेंसेस की मॉनिटरिंग सेटअप करते हैं, और उसके लिए हम पढ़ेंगे Nagios। Nagios एक टूल है। और थोड़ा सा पढ़ेंगे हम एक्सपोजर टू प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। तो ये 2 टूल्स के बारे में भी मैं अपने एंड से बताऊंगा। इसको खत्म होने के बाद हम मूव करेंगे एनसिबल में। तो एनसिबल आपका एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। इसके अंदर हम प्लेबुक्स लिखते हैं, एनसिबल एडहॉक कमांड्स होती हैं। एनसिबल किस लिए यूज होता है पता है? कि मान लो एक कंपनी के पास 500 सर्वर्स रन कर रहे हैं। अब अगर उन सभी वो सभी पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन का तो लेटेस्ट वर्जन आ जाता है कुछ टाइम में। तो अगर 500 सर्वर्स पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना है, तो उस केस में क्या आप 500 सर्वर्स को लॉगिन करके अपडेट करेंगे? नहीं, हम एनसिबल जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो इस चीज को ऑटोमेट कर देती है। ठीक है, एंड देन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए टेराफॉर्म आएगा। टेराफॉर्म एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको HashiCorp करके कंपनी ने लिखा है, और उसके अंदर हम ये जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के थ्रू कैसे बनाना है। जब मैं कहूँ कोड, कोड मीन्स टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स,
जिसको लिखा जाता है HashiCorp लैंग्वेज में, दैट इज HCL लैंग्वेज में, और वो YAML फाइल की तरह होती हैं, बहुत ही इजी होती है YAML फाइल को, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है वो, एक्चुअली वो ह्यूमन रीडेबल होती है, इतनी टफ नहीं होती है जस्ट लाइक .NET जावा वगैरह। तो हम टेराफॉर्म से हम देखेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मूव करेंगे। फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करेंगे जिसका नाम है डॉकर कंटेनर्स। डॉकर कंटेनर्स जो है, इसके अंदर हम डॉकर कंटेनर्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे लिनक्स और विंडोज पे। इसके लिए हम फिर डॉकर कंटेनर्स बनाएंगे, इमेज को पुल करेंगे, इमेज को बिल्ड करेंगे, कस्टम इमेजेस बनाएंगे, और जेंकिंस के थ्रू भी कंटेनर डिप्लॉयमेंट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस डॉकर का थोड़ा एडवांस पार्ट है, जिसके अंदर अभी जो वर्ड्स लिखे हैं वो आप नहीं समझ पाओगे, लाइक पॉड, रेप्लिका सेट, डेमन सेट, इनिट कंटेनर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जाता है ये एज कंपेयर टू प्रीवियस, बट कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को थोड़ा आसान बनाएं। टोटल कोर्स आपका 38 टू, उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी होगा, इन 3 में से एक प्रोजेक्ट हमें करना होगा, ठीक है। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि वो 3 प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट्स हम, आप यू आर ओपन टू डू ऑल 3 प्रोजेक्ट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू इन ऑल 3 प्रोजेक्ट्स। साइड बाय साइड करते रहेंगे, जैसे हमारा AWS खत्म हो गया, जेंकिंस और एंसिबल खत्म हो गया, तो हम ये वाला प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तीनों में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और यही फाइनल आप अपने CV वगैरह पे लिख सकते हैं। Sorry. So this is about the course and curriculum. Total 36 to 40 hours का कोर्स होता है। हफ्ते में हमें 6 hours complete करने हैं। If we are going to complete 6 hours in 7 days, so according to this, in 1.5 month, कितने टाइम में हम कर लेंगे? 24 हाँ, 1.5 month में हम अपना कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। तो अब अगर हमने स्टार्ट किया है, so basically we are going to cover this course most probably by 14th or 17th of April with the project work। ये हमारी टेंटेटिव टाइमलाइन रहेगी। बीच में अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ क्लासेस नहीं हो जाती है, so that we have to compensate, ठीक है। So this is how it's going to be। किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, I wanted to ask something. सर सर्टिफिकेशंस वगैरह क्या कर सकते हैं हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद? वेरी गुड क्वेश्चन। डेवऑप्स में जैसे AWS होता है, डेवऑप्स एक्चुअली क्या है डेवऑप्स का, कि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, तो एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। जैसे AWS है, एज्योर है, तो वहां पे आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वही वो कर सकते हैं। पर डेवऑप्स के अंदर आप 2 सर्टिफिकेशन कर सकते हो, सबसे पहला है टेराफॉर्म एसोसिएट का, ठीक है। टेराफॉर्म एसोसिएट का एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ये वाला क्लाउड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन, और एक क्यूबरनेटिस एडमिन का कर सकते हो। बाकी जो टूल्स हैं वो कोई सर्टिफिकेशन ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू है टेराफॉर्म की। ये $70 का एग्जाम होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, और इसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, सीमा मैम आप कॉल पे हैं क्या? ओके, किसी को और कुछ पूछना है रिलेटेड टू कि कोई जॉब वगैरह के लिए टेंशन में, कि इसमें मैं नॉन टेक्निकल फील्ड से हूँ, देन व्हाट आई हैव टू डू, हाउ आई कैन टू प्रिपेयर ऑन द कोर्स ऑन द वे, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे को जॉब लेना कितना आसान बनेगा। अभी आपसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैं नॉन टेक्निकल से इसको, मैंने भी ये डोमेन्स चेंज किया है, मैं भी एक दूसरे डोमेन में था, फिर मैं AWS से और डेवऑप्स के डोमेन में आया। तो स्विच करना इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल बनाया जाता है। बहुत ही एक आसान सी, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है उस केस में।
जैसे जैसे आप कोर्स को पढ़ोगे, 3 चीजें अगर आप करोगे ना रेगुलरली, एक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सेकंड, जो प्रोजेक्ट मैं आपको जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो असाइनमेंट आपको देना है। थर्ड, जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये 3 चीजें अगर आपने रेगुलरली 1.5 महीने तक कर ली तो वो डेवऑप्स आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और ये डेवऑप्स का एंड नहीं है, डेवऑप्स और भी वास्ट है, और भी मतलब एडवांस लेवल पे भी है, पर बेसिक और इंटरमीडिएट तो आना चाहिए ना। तो 1.5 मंथ अगर आपने इन 3 चीजों को फॉलो किया, मैं ये समझ सकता हूँ कुछ लोग जॉब करते हैं, सो फॉर दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम टू डू रेगुलर असाइनमेंट्स। उसे वीकेंड पे करो, पर जरूर करो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी कोर्स ऑफ आईटी डोमेन के किसी भी कोर्स में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर AWS, DevOps, जावा, .NET, पाइथन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के लिए आपके लैपटॉप होना चाहिए। कोशिश करो कि सभी लोग फोन्स वगैरह से ज्वाइन ना करके ज्वाइन थ्रू लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रीन शेयर करके तभी बहुत बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को इंस्टॉलेशन करने में। तो फोन में कनेक्ट करोगे तो मैं कैसे आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे? ज्वाइन थ्रू लैपटॉप, ठीक है, ज्वाइन ऑन टाइम एंड वी विल गो फ्रॉम देयर, ठीक है। तो अब मैं एक बार सीमा मैम से कॉल करके पूछता हूँ, उन्हें टाइमिंग्स का डिस्कशन हुआ है क्या, कैसे कैसे करना है, कौन या हमें ही डिसाइड करना है? तो सैटरडे संडे बोला है। सैटरडे संडे को बोलो। अच्छा, सिर्फ सैटरडे संडे ही होगा ये बैच? हाँ, हाँ वीकली वही मेरा। AWS का चालू है सर। वीकली AWS का कौन से टाइम पे चल रहा है? 8:30 से 10, 8 से 10 बजे तक सुबह। मॉर्निंग में, सुबह? हाँ ऑल मंडे टू फ्राइडे? हाँ सर। ओके, 8:30 से 10। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो सभी लोग कंफर्टेबल है ओनली वीकेंड्स पे? Yes. हाँ सर। यस सर, हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। देन सर वीकडेज व्हाट वी हैव, वीकडेज क्या बैच रही तो कोई प्रॉब्लम? वीकडेज आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, कैसे करोगे? सर हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं वर्किंग में हूँ, मतलब कंपनी में काम करती हूँ, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वीकेंड पे ही मैं कर सकती हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस अवेलेबिलिटी पूछ रहा था आप लोगों की। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। और एक सीमा मैम शायद इस वीक आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आप सब बहुत सारे लोग हो। एक कॉमन टाइमिंग निकाल के वी विल स्टार्ट अवर कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक। सो मोस्टली लाइक 1.5 to 2 hours क्लास होगी हमारी वीकेंड्स पे ऑन डेली सैटरडे संडे, ठीक है। और वो टाइमिंग्स सीमा मैम आप लोगों से शायद डिस्कस करके शी इज गोइंग टू फाइनल दैट। किसी को कुछ पूछना है कि करियर में मैं आगे डेवऑप्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कोई जनरल क्वेश्चन है किसी? आज सारे क्लियर आप कर सकते हो डाउट किसी भी चीज के रिलेटेड, कि डेवऑप्स को मैं कहाँ यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसके बिना जॉब, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में भी हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, ऑल गुड देन, लेट मी Sir, जस्ट, हाँ जी बताइए। sir, I wanted to ask that should we have some basic idea of networking also, because actually I am completely fresher. I don't have any idea about that, so that I can keep it ready before the class. The things which are required as a prerequisite for this course will be covered by me in the topic of Linux and networking part. So initially you don't need to spend so much of time in order to studying a particular thing. If only you want, you just read about internet protocols, like what do you mean by IPs and IP protocol. ये अगर आप पढ़ लो इस वीक में,
So it is going to be a very much for you easy to understand about the things which is going to be coming up. ठीक है, तो मैं एक लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ. अगर आप इसके थ्रू जाओगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है और आईपी रेंजेस क्या होती है, तो ये इनफ रहेगा एज अ प्रीरिक्विजिट. बट फिर भी मैं इसको बताता हूँ क्लास में. बट अगर आप अपना नेक्स्ट वीक थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन गो थ्रू दिस. ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. नो प्रॉब्लम. सर और एक पूछना था. एवरी टाइम आप MS टीम्स की मीटिंग की लिंक भेजोगे क्या? It's just I वो face यही login issues in the लिंक morning. लिंक will remains the same. Okay. Okay, because it's a Teams group. Yeah. I'm going to start it a little bit early, around like suppose we have a class starting from 8 a.m. Mhm. So I'll start it around 7:59 or 8 o'clock Okay. on time. So you guys will see the join link there. So that remains the same. The Okay. link and the group of my teams remains the same. Okay, sure. ठीक है. Okay, let me just check if Seema have something to discuss. Sir, हाँ जी, बताइए. आज सीमा मैडम बोली थी 8 से 9 तक ही क्लास है. हाँ हाँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ. क्लोज कर रहा हूँ. I'm closing. आप ड्रॉप कर सकते हैं. I'm just closing in 2 minutes. किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है, you guys you can drop or if you have any questions later on, you can send it to Seema. Seema can discuss with me and we'll get back. So next week शायद वो आप लोगों से बात करेंगे about the final timing of the course. Any confusions related to the course, topics, do and how, like कि क्या करना है, क्यों जरूरत है. देखो भाई, कोर्स करने से पहले ये सब चीजें जाननी बड़ी जरूरी है कि इसका मुझे कोई फायदा होगा कि नहीं होगा. भाई क्यों? क्योंकि भाई हम पे कर रहे हैं. सिंपल है. मैं बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ. मैं कोई चीज या कोई सर्विसेज ऑप्ट करता हूँ तो मैं उसको ये देखता हूँ मेरा फायदा क्या है. तो अगर आप चाहे कोर्स को ज्वाइन करो या ना कर पाओ किसी रीजन से, अगर आप करते हो ज्वाइन तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग इट एंड हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन द फ्यूचर. तो उसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज होती है. तो आप कोई भी डाउट इस वीक में आपको आता है, गो फॉर इट. आस्क सीमा. सीमा विल आइदर हैव अनदर सेशन और समथिंग लाइक दैट एंड वी कैन डिस्कस. ठीक है. Last question, I can take it and then we can close the class today. Sir, I wanted to ask how DevOps how we will grow in DevOps and how means I am unable to understand what is its utility and how we can use it for our growth. How it will be beneficial DevOps. Yes, sir. Exactly. So DevOps are beneficial for two kind of people. All right. Mostly like suppose the beauty of DevOps is like there is no hardcore prerequisite कि you should be from a technical or a non-technical having 5 years of experience. A fresher can also work on the DevOps and an experienced person also can work on a DevOps because DevOps depends upon the DevOps maturity. DevOps के अंदर सारा टूल्स का गेम है. बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे डिफरेंट इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं. चीजों को ऑटोमेट करना आना चाहिए. तो कैसे बेनिफिट करेगा? वो बेनिफिट करेगा अगर आप सबसे पहले मॉनेटरी टर्म्स में. भाई सबसे बड़ा इनकम सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैं अगर कोई स्किल्स मेरे अंदर है तो मैं उसका यूटिलाइज करके पर मंथ एक अच्छी सैलरी कमा पाऊँ, एक रिस्पेक्टेबल जॉब, एक नॉर्मल 9 to 5 का जो एक आवर होता है वो रहे और ऐसी चीजें. तो दिस इज नॉट अ सपोर्ट वर्क. तो ये सपोर्ट वर्क नहीं होता कि कभी भी कोई भी शिफ्ट हो सकती है 24/7. ये एक तरह का नॉर्मल वर्किंग आवर्स का मोस्टली काम होता है. ठीक है. एंड हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर.
Yes, sir. हाँ, तो नॉर्मल वर्क रहता है टोटली डिफरेंट फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट नहीं होता है ये, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें बनाई जाती हैं इनिशियली फ्रॉम स्क्रैच से। दो चीजों का फायदा क्या होता है, एक तो पैसा बढ़ता है, सिंपल, फ्रेशर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लस अगर आप एक्सपीरियंस हो और स्विच करते हो, मान लो आप किसी डॉटनेट बैकग्राउंड में हो और आप डेवॉप्स में जा रहे हो, तो आराम से 40 to 45% का हाइक डेवॉप्स में मिलता है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस वाले के लिए। दूसरा, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है। पर्सनल मतलब आपको एक नई स्किल सेट आती है, वो स्किल सेट आती है जिसकी मार्केट में डिमांड है। और आईटी एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को हमेशा, हर 2 साल बाद 3 साल बाद आपको कुछ नया सीखना पड़ता है। नहीं सीखोगे तो फेस्ड आउट हो जाएंगे। और फिर हम वो जो खबर आती है ना कि गूगल ने 12,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, मस्क ने इतने निकाल दिए, इस कंपनी ने, अभी सब जगह हुआ था, हर कंपनी में 4% 3%। तो वो कौन लोग निकलते हैं, वो ज्यादातर वो डिपार्टमेंट्स निकलते हैं, और निकलते हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे। कुछ नहीं होता, कोई भी ले ऑफ कभी भी तुम्हें ये बोल के नहीं निकाला जाता कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं होता है। वो रीजन क्या देते हैं कि हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, हम एबीसीडी चीजें ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में ग्रोथ नहीं दिख रही, मतलब कुछ नया नहीं ला रहे हो तुम लोग। तो प्रॉब्लम इस कि हम इस डोमेन में, इस डोमेन को कर्स बोल लो इसका, या इसका एडवांटेज बोल लो। मैं तो एडवांटेज बोलता हूँ क्योंकि मुझे नई नई चीजें सीखने को। कुछ लोग बोलते हैं क्या है यार, हर 2 साल में कुछ पढ़ना पड़ता है नया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो यही करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूँ। एक बंदा है अभी तक पिछले 15 साल से पीएचपी पे ही काम कर रहा है, उसकी जॉब चल रही है क्योंकि वो कंपनी ही नहीं मूव कर रही है, बट कहीं और उसको जॉब ही नहीं मिलेगी क्योंकि पीएचपी पे अब कौन काम करता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि आपकी पर्सनल लर्निंग होती है। इट्स गुड फॉर यू टू, जस्ट लाइक जैसे कार की सर्विस करा के कार एक न्यू हो जाती है ना, तो जब आप कोई ऐसा कोर्स करते हो डेवऑप्स का या एडब्ल्यूएस वगैरह का, तो आप एक न्यू एनर्जी फील करते हो, ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करना पड़ता है। फ्रेशर के लिए चलो ठीक है, 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए डेवऑप्स का इतना आना चाहिए, 5 के लिए इतना आना चाहिए। जब आप आर्किटेक्ट लेवल, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना टाइम के साथ साथ, तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस पे ये तो नहीं बोल सकते ना, नहीं मुझे तो बस इतना ही आता है। 10 साल के एक्सपीरियंस पे कंपनी आपको क्या एक्सपेक्ट करती है? अगर वो आपको 3-3.5 लाख पर मंथ की सैलरी दे रही है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको 15 चीजें आनी चाहिए। ऐसा होता है, ठीक है। तो वो ये नहीं कि बस आपको डेवऑप्स, तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए ये टाइप के कोर्सेज करने पड़ते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। और मार्केट का यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव विद योर ओन टीम मेंबर्स। तुम्हारे दूसरे टीम मेंबर ने डेवऑप्स का कोर्स कर लिया, तुमने नहीं किया, या डेवऑप्स की लर्निंग, चलो डेवऑप्स आ गया उसको, तो वहां पे एक ओपनिंग आई, मैनेजर से पूछा गया कि आपकी टीम में कोई डेवऑप्स है, तो बोलेगा नहीं यार हम तो डेवऑप्स से काम करते ही नहीं। बट तो उसको याद आएगा, नहीं मेरी टीम में एक बंदा है जिसने डेवऑप्स का कोर्स किया था, और डेवऑप्स का उसने, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा अपनी कंपनी में कि आपकी ये स्किल सेट है, अब आप डेवऑप्स जानते हो, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको रेफर कर देगा। तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और जॉब में कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, टीम वर्क होती है, मैं समझ सकता हूँ, हाँ टीम वर्क वगैरह सारी चीजें हैं, बट इट ऑलवेज कम आउट टू बी अ कॉम्पिटिटिव कि कौन कितना जाता है। आईटी में यही सेलिंग पॉइंट है कि किसको कितना आता है और कोई कितना काम कर सकता है उस पर्टिकुलर उस पे, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको दिखेंगे जब आप डेवऑप्स को कर लोगे। फ्रेशर के लिए, फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए ट्रेड्स सेम है कि डेवऑप्स फ्रेशर को भी एक अच्छा पैकेज दिलवाएगा, एक्सपीरियंस को भी, स्किल सेट इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे इसके जॉब वैकेंसीज बहुत सारी हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑन बोर्ड, सॉरी ऑनशोर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बहुत लोग दुबई, हाँ बहुत लोग दुबई वगैरह चले जाते हैं, कुछ लोग इधर चले हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस में हैं, वो उनकी कनाडा की पीआर प्रोसेस में उनको बहुत इजी मिला क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेशन था। किसी को पता है कनाडा पीआर प्रोसेस कैसे काम करती है? तो कनाडा पीआर प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारी प्रोफाइल लगती है, और उस प्रोफाइल में ये देखा जाता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इस कंट्री की ग्रोथ में लगाओगे। ऐसे ही नहीं बुला लेते हैं किसी भी कंट्री में। मैं अभी वर्क वीजा की बात नहीं कर रहा, वर्क वीजा तो बहुत शॉर्ट होता है, 2 साल 3 साल का, उसमें तो एक कंपनी बुलाती है। मैं आपको कह रहा हूँ परमानेंटली शिफ्ट होने वाले सिनेरियो में।
तो जब कनाडा जैसी कंपनीज है, यूएस जैसी कंपनीज है, बाहर जो भी कंपनीज है, जब आप बोलते हो कि हमें आपकी कंपनी में आना है, तो वो आपको देखती है प्रोफाइल में कि अच्छा आपने ऐसा क्या किया हुआ है जो आप मेरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करोगे और मेरी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करोगे। तो आप बोलोगे कि हमने आईटी में ये सारी चीजें की हैं, तो वहां पे उस कंट्री को अगर जरूरत होगी तो वो आपको बुलाएगी। ऐसे काम होता है। सो दीज थिंग्स बेनिफिट्स अलॉट। कुछ ये एक ऐसी चीज होती है प्रोफेशनल कोर्सेज। इवन आई गो फॉर कोर्सेज, आई हैव रिसेंटली आई वेंट फॉर ब्लॉकचेन, और यहाँ भी नहीं, मतलब बाहर की कंट्री में, वहां पे जाके मैंने वो एक 3 दिन का अपने पर्सनल पैसे से वो खर्च किया। सो लर्निंग हमेशा रहती है। तो मैं भी अभी भी कोर्सेज लेता हूँ, मतलब मैं भी खुद क्यूबरनेटिस के नए वर्जन आते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में, तो मेरी लर्निंग भी स्टॉप नहीं है। ठीक है। सो एक बार स्टार्ट करो, एक बार इम्प्लीमेंट करो, फिर उस पर कैपिटलाइज करना होता है हमें। जो हमें आ गया वो तो आता ही है, उसके ऊपर हम कैसे बढ़ सकते हैं प्रोफेशनली और पैसे के टर्म्स पे। ये कोर्सेज हमारे उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लस जो हमारे ये ले ऑफ्स वगैरह होते हैं, तो उसमें उन लोगों को नहीं बोला जाता जो कुछ अपग्रेड करते हैं, जो एक ही Sir, I'm unable to hear your voice. हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। Hello, can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I got disconnected from laptop था। तो मेरी बात समझ आ गई एडवांटेजेस के बारे में जो मैंने आपको बताया? Yes, sir. ठीक है, फिर Yes, sir. इस सेशन को हम यहाँ क्लोज करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए। आई होप कोर्स हमारा अच्छे से निकले एंड यू गाइस विल learn and take out something from it. So all the best. We'll meet next week. उससे पहले आपको सीमा मैम टाइमिंग्स के बारे में बता देंगे। Okay, sir. Okay. Thank Okay, you sir. guys. Okay. Thank you, थैंक sir. यू सर।